Assalamu alaikum students. Today we will talk about the topic of non-profit organization. This is lecture number 3. You should watch lecture 1 and 2 before you proceed with lecture number 3. We are having a look on practice problem number 2 in this lecture. So this is the practice problem. Following is the receipt and payment account of Shahaji Sports Club for the year ended December 31, 2020. Receipt and payment account means this is actually the cash book. The receipt side is showing you the incomings of cash, or you can say the inflows of cash, and the payment side is showing you the outflows of cash. Balance on January 1, 2020 is this cash which is available with Shahaji Sports Club. ये कैश जनवरी 1 को ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल था. सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ मैच टिकट और सेल ऑफ स्क्रैप से ये कैश और कलेक्ट हुआ. ये वो सब रीजंस हैं जिन पे इन्होंने पेमेंट्स की. So few payments are made for the expenses, and sometimes they had purchased some assets, the fixed assets or the current assets, which they are purchasing for paying cash by paying cash. So they are also shown here. Receipt side is showing you the inflows of cash and payment side is showing you the outflows of cash. This is the balance, or you can say the cash available on this last day with Shahaji Sports Club. Let's see what is the requirement of the question. Prepare club's income and expenditure account for the year ended December 31, 2020 and its balance sheet on that date after taking the following information into account. It means these adjustments are to be made before we proceed with income expenditure account or the balance sheet. There are 50 members each paying an annual subscription of rupees 1000. Current arrears for this year are 7000. सब्सक्रिप्शन इनकम में से 7000 रुपये अभी भी लेने रहते हैं. इट मीन्स 7 members had not still paid the subscription fee. So this 7000 is the accrued subscription, or you can say subscription receivable. Whenever we have accrued subscription or subscription receivable, it will be added in this subscription which we had already received. Then donations promised during the year but not received are 2000. It means these are the donations which are yet to be received. If we look at the question, donations which are already received are 10,800, but still which are due and not yet received are 2000. तो ये भी donations receivable हैं, इसको भी हम donations में add करेंगे. ये जो donations की amount है 10,800, इसमें ये 2000 जो अभी भी receivable हैं add होंगे. Local taxes amounting to rupees 800 per annum have been paid up to 30th June 2021 and rupees 1000 salaries are outstanding. दो एडजस्टमेंट्स एक साथ दे दी, टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे. 800 रुपीज़ के पूरे साल के टैक्सेस हैं जो 30 जून 2021 तक चलेंगे. हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं 31 दिसंबर 2020 को. इट मीन्स इसमें से हाफ अमाउंट हमारी इस साल का टैक्स एक्सपेंस है और आधी अमाउंट हमारी नेक्स्ट ईयर के प्रीपेड टैक्सेस हैं. सो वी विल बी रिकॉर्डिंग दोज 400 एज प्रीपेड टैक्सेस and we will in our balance sheet, and we will be taking into consideration only 400 as our taxes expense. 1000 की सैलरीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है. सैलरीज एक्सपेंस में हम देखते हैं क्या अमाउंट है. सैलरीज एक्सपेंस 12000 है और उसमें 1000 रुपीज़ अभी भी अनपेड है. तो दिस 1000 विल बी एडेड इन आर सैलरीज एक्सपेंस. Building is valued rupees 1 lakh in the books and depreciation is recorded at 5% per annum. 1 लाख की बिल्डिंग है जो हमारा एसेट कंसिडर होगी. कैपिटल एट स्टार्ट की कैलकुलेशन में बिगिनिंग एसेट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है. डेप्रिसिएशन 5% इस पे रिकॉर्ड होगा, कैलकुलेट होगा. एनुअल डेप्रिसिएशन है, दैट विल गो इन द इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कॉलम. सो लेट्स स्टार्ट दी वर्किंग ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. Incomes, as I told you, subscription, donation, sale of match ticket, sale of scrap. All these given in the receipt payment account, receipt side are showing you the sources of income. Subscription में ये जो 7000 arrears थे receivable हैं वो add हो जाएंगे. Balance sheet में भी ये 7000 as subscription receivable show होगा. Donations में ये 2000 add हो जाएंगे और balance sheet में donation receivable 2000 show होगा. Sale of match ticket, sale of scrap, in this way we are calculating our total incomes. Expenses देखें, जिस एसेट को आपने ख़रीदा, जिस करंट एसेट को आपने ख़रीदा और वो बाद में आपके पास एज एंडिंग स्टॉक नहीं है,
इट मीन्स ये फुली कंज्यूम हो गया। फुली कंज्यूम हो गया तो ये एक्सपेंस बन गया। ये ऑफिस सप्लाई जो करंट एसेट था और अब आपके पास स्टॉक में नहीं है, दिस इज योर एक्सपेंस नाउ। सैलरीज 12,000 थी, उनमें 1,000 ऐड हो जाएगा, सैलरीज एक्सपेंस बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। जनरल एक्सपेंसेस, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमने क्वेश्चन की पेमेंट साइड में से लिया। क्वेश्चन की पेमेंट साइड में हमें ये सारे एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं। इस फिक्स एसेट के अलावा सारी अमाउंट हमने एक्सपेंसेस एज्यूम करके यहाँ ले लिया। लोकल टैक्सेस में 400 प्रीपेड थे नेक्स्ट ईयर के, ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 5% आएगा। दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। इनकम्स में से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करें। इनकम्स का टोटल ग्रेटर है तो सरप्लस ऑफ इनकम है, यहाँ पे आएगा। अगर सपोज एक्सपेंसेस का टोटल ग्रेटर होता तो वो यहाँ आता और डेफिसिट के तौर पे रिकॉर्ड होता। The total of income and expenditure is balanced. Income expenditure account is complete. Let's proceed to the balance sheet. In balance sheet, in lecture 1 we had discussed the column of accumulated fund. Non-profit concern में हमें accumulated fund में यहाँ capital at start चाहिए होता है और capital at start की calculation हम कैसे करेंगे? Beginning assets minus beginning liabilities will give you capital at start. कैपिटल एट स्टार्ट के लिए इस क्वेश्चन में जो डेटा हमें गिवन है उसमें सिर्फ 2 एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस और बिल्डिंग का बैलेंस जो है 1 लाख रुपीज। बिगिनिंग एसेट्स में यही 2 चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्लाइड नंबर 2 पे हमने देखा क्वेश्चन में सिर्फ एक हमें यहाँ बिल्डिंग की अमाउंट गिवन है 1 लाख और हमें एक कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। कोई बिगिनिंग लाइबिलिटीज हमें इस क्वेश्चन की डेटा में नजर नहीं आ रही, इसलिए हमने उन दोनों एसेट्स को ऐड किया। लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है तो कैपिटल फंड एट स्टार्ट की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। और इसे हमने करना क्यों है? क्योंकि हमें बैलेंस शीट में इस जगह ये कैपिटल एट स्टार्ट चाहिए। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स यहाँ लिखें। कहाँ से आया? कैश का एंडिंग बैलेंस आ गया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, डोनेशन रिसीवेबल, एडजस्टिंग डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वहाँ से पिक किया। लोकल टैक्सेस एज वी नो 400 अगले साल के एडवांस चले गए थे, वो 400 यहाँ आ गए। स्पोर्ट्स गुड्स जो हमने देखा था पेमेंट साइड पे फिक्स एसेट है वो यहाँ आ गया। बिल्डिंग हमारे पास बिगिनिंग ईयर से था 5000, उस पर डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके 95,000 आ गया। टोटल करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों मिलके टोटल एसेट्स यहाँ आ गए। लाइबिलिटीज बिगिनिंग ईयर में कुछ नहीं थी, लेकिन फिर हमने देखा सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 1000, वो सैलरीज पेबल में आ जाएगा। कैपिटल फंड बिगिनिंग एज वी हैड कैलकुलेटेड इन प्रीवियस स्लाइड वो आ जाएगा। सरप्लस हमने देखा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास सरप्लस की अमाउंट आ गई है 40,900, वो हम बैलेंस शीट में अपने पास यहाँ ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कैपिटल फंड क्लोजिंग प्लस टोटल लाइबिलिटीज विल गिव यू टोटल इक्विटीज इन द शाजी स्पोर्ट्स क्लब बैलेंस शीट। सो दैट्स हाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड आवर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट में पूछें। लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस इन अपकमिंग लेक्चर्स। In upcoming days, keep watching Commerce Lecturer Online.